पाकिस्तान में ही है इसलिए गुड इवनिंग वाला ही है, लेकिन इफ समवन इज इन अ टाइम जोन, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। ये हमारा एक राउंड टेबल है। अगर कोई जल्दी लॉग इन कर चुका हुआ था तो उसको अब तक पता चल गया होगा। इट्स अ राउंड अप रिव्यू ऑफ द फर्स्ट रास्ता कॉल। काफ़ी सारे आप में से ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रपोजल्स दिए थे, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके एक्सेप्ट हुए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके नहीं हुए। तो आज बेसिकली हम उसका राउंड अप करेंगे। रैक मेंबर्स भी मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि क्या इश्यूज थे जो कि उन्होंने देखे, किस तरह सेकंड राउंड के, क्योंकि अब कॉल आ चुकी हुई है, आप अपने प्रपोजल्स जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले कि हम रैक मेंबर्स की तरफ जाएं, आई वुड रिक्वेस्ट फहीम कि वो एक क्विक सा राउंड अप जो है वो दे दे। फहीम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायाब। मैं बस ये एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है इसी काम के लिए। तो इसमें बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा। वैसे तो लोगों को पता है कि रास्ता क्या है, बट उनके लिए जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो मैं रास्ता को इंट्रोड्यूस करा दूंगा। क्विक एक स्नैपशॉट दूंगा रास्ता राउंड 1 का, और फिर मैं रास्ता राउंड 2 जो है उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें वी विल टॉक अबाउट द रिसर्च प्रपोजल्स, उसके एप्लीकेशन गाइडलाइंस क्या हैं, प्रोसेस बेसिकली क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, एंड व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम रास्ता राउंड 1, और वो हमने जो तब्दीलियां की हैं राउंड 2 के अंदर वो क्या है। सो बेसिकली जो रास्ता है, इट्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट। रास्ता, इट्स a multi-year, multi-million project funded by PSDP, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives. Or basically the mission of Rasta is to develop a high-quality research network of academia and think tanks across Pakistan, producing high-quality research, evidence-based policy research, which is to inform Pakistan's public policy processes. So if we look at the round 1, which is a competitive grant program, CGP round 1, we actually received 217 applications, और उसमें से 18 जो हैं वो हमारे सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं, जिनको हम अवॉर्डीज कहते हैं। यहाँ पे I'll just show you the table in a while. And round 2 जो है CGP round 2, we have already announced the call for research proposals, and all details are available on our website, which is www.pi.org.pk/rasta. So this is the snapshot of Rasta CGP round 1. So if you see that we have received 217 applications, 15 applications were incomplete or there were late submissions, so we did not include those. So there were actually 202 applicants. Of those, 72 were recommended for detailed review, stage 2 review. And then of those, 31 were recommended for a review workshop. And from these 31, 18 are the awardees who were, successful and who received Rasta CGP awards from this first round. And if you see, there is also tier distribution given. This tier 1, tier 2, and tier 3. The details of these tiers are given on our website. Basically इस tier को create करने का जो main reason था, वो include करने का था less developed areas को. For example, tier 3 में जो है, we have Balochistan, we have Gilgit-Baltistan, and we have AJK. So we want to give them equal opportunity to participate in this program. So इसलिए हमने tier 1, 2, 3 में उनको divide किया और उस तरह उनको चला. And I'll just show you later कि आप इसकी मज़ीद डिटेल कहाँ देख सकते हैं. For now, we have already announced Rasta CGP round 2. For that, we have now more focused and detailed themes for this round. These are the three main themes for Rasta CGP round 2. The first of all, the first theme is the public policy processes and economic development. And if you see, there are 4 sub-themes in this theme. So you can come up with a proposal in public financial management, fiscal responsibility, tax administration, devolution in Pakistan, or political economy of development budget in Pakistan. And then there are other further more details कि हम basically आपसे चाह क्या रहे हैं
जो कि वाकई में रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर रिसर्च करना, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, तो रास्ता आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. सो this time we have actually given you more detailed themes and sub themes in this round. The second theme is foreign aid effectiveness. Again, we have 4 sub themes in this theme. First one is aid policy management in Pakistan, then economics of foreign economic assistance, then evaluation of donor-led development initiatives in Pakistan, and the fourth one is review of leading donor agencies in Pakistan. So these are actually the areas जिसमें बहुत कम research हुई है, बहुत कम तवज्जो दी गई है. Donors हमारे projects को तो evaluate करते हैं, हमारे initiatives को evaluate करते हैं, but it is equally important कि हम donor agencies को भी evaluate करें, उनको भी review करें, उनके programs को देखें कि वो पाकिस्तान में कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, और उनके जो बहुत flagship जो programs हैं डोनर के जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, हम उनको भी evaluate करें. तो इसके लिए it's very important and we are looking forward for to some very interesting research proposals from our potential applicants. The third theme is agricultural and real estate markets. Again, इसमें बहुत कम पाकिस्तान में काम हुआ है. So there is one sub theme is on agriculture and agricultural markets, जिसके अंदर there are again हमने details उसमें दी हैं कि input supply market है, production market है, wholesale में, और बहुत से areas के अंदर जो है वो काम होने की जरूरत है. Similarly, real estate market dynamics in Pakistan को अगर आप देखें तो उसमें limited काम है, and we really want कि इसके अंदर अच्छे से अच्छे हमारे पास proposals आए, रियल स्टेट मार्केट के ऊपर आए, लैंड टाइटलिंग के ऊपर आए, लीगल फ्रेमवर्क पे हो, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर हमारे पास अच्छी केस स्टडीज जो हैं. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड to evaluate and fund those studies in this round 2. So basically, for those who are new today here, so this is the grant description. The maximum duration to complete a project which is allowed under CGP Rasta is 12 months. This is the maximum duration. You can also come up with a proposal for 3 months, 6 months, 9 months. We will definitely, accept that also. And the maximum grant available for a project is 4 million, 40 lakh जो है वो maximum होंगे. यहाँ मैंने बहुत brief सी detail डाली है. More detail is available on our website. And as most of you know, that there will be a rigorous review and monitoring and evaluation process in this process, in this Rasta thing, to ensure transparency and quality of research. Quality is our, number one priority in this program. Female applicants, students, and researchers from less developed areas of Pakistan are highly encouraged to participate. जैसा कि मैंने mention किया, we have tiers also, and we are really encouraging them to please come forward and do participate in this program for us. And the submission deadline for this CGP round 2 is 10th of April. If you go to our website, you will find Rasta form A1, A2, A3. These are more refined new forms which we have placed on our website, cover sheet, research proposal, and proposed budgets. And guidelines are available for each form there on our website. And there will be additional documents required for professionals. We need their, brief CV. For principal investigators and co-principal investigators, and from students, if they are our applicants, so we would like to, they need to actually submit their official transcript and a letter of recommendation from their supervisor. So you can just go to our website, download these application forms from our website, complete these forms in MS Word format. Please, आपने PDF में जमा नहीं कराने हैं, वर्ड फॉर्मेट में आपने जमा करवाने हैं. एंड जस्ट प्लीज जस्ट सेंड अस टू rasta@pie.org.pk. आपको कोई जरूरत नहीं है हमें हार्ड कॉपी मेल करने की या कुछ भी. विद इन 14 days आफ्टर द सबमिशन डेडलाइन वी विल inshallah acknowledge your application.
and please do not mention your name or organizational name in anywhere except your cover sheet. आपने research proposal में या अपने budget document में अपना नाम या अपनी organization का नाम नहीं लिखना, और अगर ऐसा आप करेंगे तो please we will not be able to process your application from there. So let's come to the CGP process, Rasta CGP process. So basically we are, if we talk about round 2, we are at stage 1, which is the call. So we have already issued the call for research proposal. And we are today doing this pre-submission engagements with our potential applicants. Next stage would be the review process, in which we will have a 3-stage review process. उसमें सबसे पहले तो है कि there will be an initial review, जिसमें हम जितने भी proposals हैं उनको double blind review करवाएंगे. यानी कि it means कि आपका नाम उसमें नहीं होगा, organization का नाम नहीं होगा, जो reviewer होगा he or she will not know कि ये proposal किसका है. So there will be a complete transparency in that. So initial review में double blind review होगा, and there will be a quick review on that, and they will let us know कि जी अब इसमें detailed review में किसको जाना है. Then in the second stage there will be again double blind review, जिसके अंदर detailed review बहुत nitty gritties के साथ आपके proposal को देखा जाएगा. And then the successful applicants will be invited to present their research work in front of the Research Advisory Committee, which is the RAC. This we call the review workshop, जिसमें आप अपनी टीम के साथ आएंगे और प्रेजेंट करेंगे. After this there will be a RAC meeting, जिसके बाद हम awards announce करते हैं. Then comes, after the announcement of the award, then comes the monitoring and evaluation. So we have a Rasta monitoring and evaluation desk at Rasta Project Management Unit, जो कि आपकी monitoring को progress करेगा. We will also assign mentors who are basically our RAC members, our honorable RAC members. वो आपकी mentoring करेंगे. Mentoring से मुराद ये है कि oversee करेंगे आपकी तमाम वहाँ पे activities को. And after the 6 months period, अगर आपकी 12 month की study है, तो after 6 month period, there will be a midterm review workshop. For this workshop, again, you have to present, you have to first submit your interim report, and you have to come up with a preliminary findings by that time in 6 month time, and your mentors and the RAC will evaluate your progress at this stage. Finally, after 11-12 months, you will submit us the final report, and then there will be a Rasta conference in which you will present your final findings and report everything. And then after that, we will publish your working paper and policy briefs, and Rasta will disseminate the messages and everything from that. So this is basically the 4-stage process of your Rasta CGP. And if you want to know what happened in the last round, how was the review process, so we have Rasta Notes 2 on our website. अगर आप Rasta की website पे जाएं तो वहाँ पे Rasta XP का एक टैब है, उसके अंदर Rasta Notes हमारे पास Rasta Notes 1 and 2 available है, जहाँ पे Rasta 2 के अंदर there are detailed डिटेल्स अवेलेबल के इसको रिव्यू को कैसे किया गया, नंबर्स आपको बताए जाएंगे, कैसे उसको प्रोसेस को चलाया गया, तो वहां पे वो है. व्हाट्स न्यू इन दिस, एज आई सेड के in this round we have more focused themes and sub themes. We are pleased to tell you, we are pleased to share that we have new additions to our research advisory committee, and there are names like Dr. Sohail Ali Safdar, who is Dean NSPP. We have Professor Adil Malik from University of Oxford. We have Dr. Zahid Asghar, he is the chairman Economics, School of Economics, Quaid-e-Azam University. Dr. Isa Aftab from Lahore. So we have very good names, which we are very pleased to actually, in this rack. And then we have these updated application forms. And then we have also placed project briefs. All 18 projects briefs are now available on our Rasta website. So you can also go there and you can see the names and their pictures and the brief of the project, जिनको हमने fund किया है, जिनको हमने Rasta ने awards दिए हैं. So you can also try to,
get in touch with those colleagues, and you can seek some guidance also from them. And the final thing is that we have started this Rasta XP, which is the Express, Experience and Expedite event. These includes our Rasta notes, this includes our Pied Rasta events, our knowledge hub, and we are now building our Rasta community. If you want to participate in that, you can fill form C1, which is available on our website, and you can become the part of Rasta community, and we will share our updates and all our opportunities in Rasta, and we will help each other to grow this knowledge network in Pakistan. There are also more details available on our website about applicants' qualification, budget guidelines, criteria and process, and expected outcome. And this is our address, again, website, and you can write our email. You can also call us anytime, and we are always here to answer your calls and your queries every time. Thank you. Thank you, Fahim, for this quick roundup of round 1 and guidelines for round 2. Fahim, अगर आपने ये जो एडिशंस हुई हैं रैक में उनके नाम लिए, अगर आप क्विकली जो हमारी रैक 1 वाली रैक थी, राउंड 1 वाली रैक थी, अगर आप उनके भी नाम ले लें। फहीम? ओके, फहीम कहीं गायब हो गया। आई थिंक हम सॉरी मेरा माइक नहीं एक्चुअली काम कर रहा था। मैं क्विकली जो है ये वेबसाइट शेयर कर लेता हूँ और उसके साथ मैं नाम भी बोलता जाता हूँ। हमने इस जो रैक है इससे बहुत काम लिया। वी नो वी आर so very thankful जिस तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आई थिंक दे जस्ट वेंट बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी। जी, so the chairman reg is Dr. Nadimul Haq, and then we have member private sector development Mr. Asim Saeed from the Planning Commission of Pakistan. We have Zafrul Hassan Saab, he is chief macro section, again Ministry of Planning, Development and Special Initiatives. We have Dr. Hafiz Jamali, who is additional secretary government of Balochistan. We have Dr. Naimuz Zafar, who is chief economist, Planning and Development Board, Government of Sindh. We have Dr. Khalid Chauhan. He is DIG Police Azad Jammu and Kashmir. And then we have Dr. Amanullah, who is Joint Chief Economist, PND Board, Government of Punjab. We have Dr. David Auden. He is Professor, Virginia Political Institute, USA. We have Dr. Ahmed Pirzada. He is lecturer in economics from University of Bristol. We have Sultan Mahmood, Assistant Professor of Economics, the New School, Moscow. Dr. Asma Haider, Professor of Economics, IBA Karachi. We have Dr. Zainul Abidin, DG R&D, Higher Education Commission. Dr. Athar Maqsood Ahmed, Professor of Economics, NUST, Islamabad. We have Dr. Hemant Das Lohano, Professor of Economics, IBA Karachi. We have Dr. Abdul Salam Lohdi. He is a professor and director, University College of Zob, Balochistan. Dr. Durre Nayab, Joint Director, Research, PIDE. Mr. Umar Siddiq, Senior Research Economist, PIDE. Dr. Junaid Alam Memon, Assistant Professor, PIDE. And then myself, we have Dr. Shaheen Nasir, Assistant Professor of Economics, Lahore School of Economics, Lahore. Dr. Isa Aftab, as I mentioned, Dr. Zahid Askar. I forgot to mention that we also have a new member, Dr. Ryan Cadwell. He is professor from University of Manitoba, Canada. And Adil Malik, I have also already mentioned. Thank you, Fahim. So now I'll shift to RAG, and I mean, anyone can start. My first question is that how do you find the quality of the proposals that you reviewed in round 1? एंड आपको कितना लगा कि वो कंफर्म कर रहे थे जो हमने थीम्स अनाउंस की थी, और वो कितने रेलेवेंट थे पॉलिसी मेकिंग के साथ? अथर, मैं आपसे शुरू करती हूँ, आपने क्योंकि लॉग इन सबसे पहले किया था। अथर? So thank you, madam. It is an honor and pleasure to be associated with the Pied Rasta initiative.
And over the last few months, probably, I was able to review a number of research proposals. Obviously, it was a blind review. And so it was relatively easy for me. I have a number of concerns with regard to many of the proposals, but obviously I am not alone in this evaluation process. So, but my basic concerns are, I had 4 problems with the proposals in general. Some were exceptionally well, so very well written, very well focused. So they were through from the processes. But those which were not able to go through, or which had difficulties and they were asked to be to revise something, there were 4 problems, I think. Number 1, there was lack of objectivity. When I say lack of objectivity, it has various dimensions in it. First of all, in many cases, problem was not very well defined. It was not possible to see through these proposals, some of the proposals, that what actually they were looking at, why the problem they have submitted proposal for is significant enough, and how they will proceed with that problem area. Within that, because the objectivity, the problem was not well defined, there was no theory behind why we want to carry out this research. The application process, that is estimation process, was not there. And most importantly, the policy relevance of that project was not there. So that is the concern number 1, lack of objectivity all through, starting from the definition of the problem or the identification of the problem, and then the ultimately what should be the policy relevance and how the policies will be derived out of it. So that was number 1. The second concern was how to proceed with this work. Well, if the problem is defined, in certain cases, I was amazed to see that people were either some of the project or proposal submitters, they simply ignored this process, how they will be proceeding with the project, or their approach was vague, or it was basically unsuitable. In certain cases, it was unsuitable. Whichever procedure they identified, to me, at least I found that approach to be unsuitable. So that was the second concern with me. That forced me to reject those proposals. The third and more important area, in my view, was in many cases, people were not aware of the literature, relevant literature. At times, proposals were submitted not realizing that similar work has already been done, either at the ministries or at the academic institutions. So the proposal was largely a replication of the work which was already there. So do we need replication of the work? So that also forced me to reject such proposals. The final concern was that at times the budgeting of the proposal, the budget requirement for the work was simply outrageous. Now, if an upper limit is defined by the Rashtra project that it is 4 million,
it doesn't mean that each and every project will cost 4 million. And you will observe that those who have qualified, even those projects are nearly for 4 million. 40 लाख रुपए के करीब सबने अपने बजट बनाए हुए. It cannot be the case. There are desk studies, there are field studies. And those who are involved with this type of research, they know that field studies are always expensive, but desk studies are largely not very expensive. And when the costing for individual researchers is also there, their fee, their remuneration is also well defined. Then even then people asking so much of money, it was simply, I felt कि जी कि जिस तरह सिर्फ ये पैसों के लिए ये काम हो रहा है, इसमें जो एकेडमिक है ऑनेस्टी वो नजर नहीं आ रही थी मुझे. तब भी मैंने वो प्रोजेक्ट्स जो थे वो रिजेक्ट कर दिए कि भाई पैसे की अगर इतनी लालच है तो फिर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जहां से पैसे मिल सकते हैं. ये इस तरह के काम जो है ये पाइड वालों के साथ ना करो. एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसने अगर एक काम पकड़ा है तो उसको तो जरा सही तरीके से कर दे. सो 4 चीजों पे मैंने जो है ना प्रपोजल्स को ऑब्वियसली इन लाइन विद द ब्रॉडर जो हमारी टोटल जो उसका थीम है, जो भी फ़हीम साहब ने एक्सप्लेन किया है फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो हमने प्रपोजल्स मांगी हैं. तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो सारे का सारा काम जो है वो उस थीम के साथ रिलेट तो करे फॉर गॉड से. आजकल तो हर चीज थीम के साथ लिंक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन ये भी नहीं लोगों ने किया. दूसरी बात ये है कि जी कि अपना काम जो है वो आप क्या करने जा रहे हैं ये तो समझ लें. खामखा 15-20 सफ़े काले करके पैसे मांगने शुरू कर दें, ये भी ना करें. I am blunt at this moment and let me be blunt on this part. ये देखिए इस तरह नहीं है ये काम. ये इस तरह ये काम जो है ये रिसर्च के काम जो होते हैं इसमें बहुत वो चाहिए होता है कि जी कि आप एक पैशन से करें और उसमें कोई प्रॉब्लम को आप एक कोशिश करें कि वो प्रॉब्लम जो है उसको हम रिजॉल्व कर सकें. तो ये चीज जो है ये मुझे नजर नहीं आई और लोगों ने उस तरह से मेहनत करके प्रपोजल्स नहीं लिखे थे जिस तरह से लिखे जाने चाहिए. सो दैट इज माय सबमिशन. इसको मैं थोड़ा सा अमेंड कर दूं कि लेट्स नॉट से कि नहीं नजर आए, आप ये कहें कम नजर आए. नहीं नजर आया. इन सर्टेन केसेस आफ्टर ऑल कुछ अच्छे प्रपोजल्स भी तो थे ना. सर्टेन केसेस इट डिड नॉट, यानी बहुत मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ. मे बी कि मेरे वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ऊपर मैंने किए हुए थे, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ. लेकिन बात ये है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें ऊपर के स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे. कई केसेस में वो बिल्कुल नजर नहीं आए, कई केसेस में जो आप बात कह रही हैं वो ठीक है कि कम नजर आए, और कई केसेस तो ऐसे थे वंडरफुल कि विदाउट एनी चेंज ऑफ कामा और फुल स्टॉप वो हमने एक्सेप्ट भी किए. तो ये नहीं है कि सारे ही एक से थे. लेकिन उसमें इतनी डाइवर्सिफिकेशन थी कि वो उसको हाईलाइट किए बगैर ये बात हो नहीं सकती. सही नहीं, बिल्कुल सही. इसका पर्पस ही यही है, और मेरे ख्याल में इस पूरे रास्ता का पर्पस ही ये है कि जिन चीजों ने आपको बॉदर किया उन्हीं को करेक्ट करना है. डॉक्टर अहमद पीरजादा, यू वर अमंग आवर स्टार रिव्यूअर्स. आपका क्या ख्याल है, मतलब जिन्होंने बहुत पेन से सारी वर्कशॉप्स 5 दिन 6 घंटे अटेंड की? Thank you for the opportunity to speak. So let me make 3-4 points. 2 of them will be a bit more overall, and 1 or 2 of them are quite specific. So the 2 overall points are sort of relevant to what Athar Ahmed Saab is saying, that one thing which doesn't come across is basically the work which has already been done, right? So it's important to highlight that so that you can then identify what is the research gap which you are basically trying to fill in here. So that's one overall comment. The second overall comment is it's also not explained clearly that the methodology which you are proposing for the question you've got at hand, that is really the methodology which is being used in the relevant literature to address this question, right? So keep in mind, I mean, the reviewers, yes, they are well respected and all that, but they are not necessarily fully aware of
the research around the specific proposal you are proposing, right? So in that sense, you have to sort of bring forward and say that this is really the research method you're adopting for answering this question is really what is being followed on the front line of this research path. So these are the two overall comments. Now let me come to the third comment, the third comment, which is I think a lot more important. And that is to do with the methodology part. Right? I think, so my overall observation was that is really where most proposals lacked. So just for an example, let me give you what many of the proposals look like. So there was, they had the research question, they came up with, okay, so this is the research question we are going to focus on. This is why it's important and all that. There were obviously deficiencies about whether there has already been some work done in that respect or not, whether the methodology you're proposing, whether that is relevant or not. But leaving that aside, then you immediately, many of the proposals moved on to, okay, so these are the stakeholders which you're going to talk to. And you're basically going to talk to them, or you're going to conduct some survey, and that survey is supposedly going to answer the question that you are trying to address, right? So this was, by and large, this was really the format which many of the proposals followed. And that's really the problem, right? So now you can't just say that these are the stakeholders and then you are going to basically conduct a survey and then supposedly some answer is going to come out of it. But rather there's a lot of work which goes into the pre-survey analysis and the post-survey analysis. Why is it, or what type of a survey you are going to conduct, right? What is the nature of questions you're going to ask, and why are you going to ask those questions? So that's really, really important. Why is it, I'm sure, again, you have to pin it down in the relevant literature. Why is it that asking these questions is actually helpful towards addressing the question at hand? I'm sure many of you, or many of the people who are basically, who do rely on these survey methods, right? These are stated preference methods, and we know there's so much things which can go wrong. People can answer questions which are simply based on, not necessarily on how they will behave in reality, but really what they want to pretend to be or whatever, right? So there's this warm glow effects and all those sort of things. So you really have to sort of pin down that these are the questions. How will you design the survey? Who are the stakeholders? Why are they the stakeholders? What exactly is the conflict between the stakeholders which you're trying to address, or how you'll address them, and so on. So that's really, really important. And that was almost always missing. There was almost nothing said about what will be the nature of questions asked, why the stakeholders you've chosen are the right stakeholders, what is it that you are trying to get out of the survey, right? That's one. The second thing, which is again relevant, it was almost always missing, was to do with the post-survey analysis, right? So fine, now that you have done the survey, now you've got this either quantitative data or the qualitative data. What next, right? So how will you process this data to come up with the answers to the question you have laid out at the beginning, right? You can, I mean, people can interview people, we can have surveys, but then at the end of the day, you can come up with your own results, right? So coming back to what Athar Ahmed Saab was saying, how will we know, how will the reader know that the analysis you have done has some sort of an objectivity there, right? So I'm more from the quant side. In quantitative work, I mean, it's sort of, there are obviously methodologies you can use to analyze the data. I'm not really a qualitative person, so I don't want to go too much in that direction. But nonetheless, I'm sure there must be some framework within which you analyze those qualitative, the qualitative data which you end up collecting in the process of interviewing or whatever, right? There must be some framework there which can help you achieve some degree of objectivity, which can then sort of give you some final conclusions. So that was, I think, for me, overall, this aspect around methodology, its relevance, that was really the most important point, which I think must be addressed for anyone submitting in the second round. Thank you. Thank you, Ahmed. And since you ended on policy, I'll ask Zafrul Hassan from Planning Commission. Zafar, आप please अपने आप को unmute कर लें. Yes, madam. I mean, what do you think, आपके लिए, how relevant the proposals were in round one? I think
mostly because we are living in a country where research culture is not very common. So we are facing with we are just inviting all researchers to policy. So policy culture is not strong. Policy makers are also not looking at research while making policy. तो आई थिंक डॉक्टर अतर साहब की जो पॉइंट्स थे उसमें जिस तरह हार्ड कोर रिसर्च, बिकॉज डॉक्टर अतर साहब बिलोंग टू हार्ड कोर रिसर्च, तो हार्ड कोर रिसर्च का कंटेंट कम था. अहमद पीरजादा साहब ने मेंशन किया कि इसमें बहुत से जो सर्वेज वगैरह और वो सर्वे के रिजल्ट ये भी डोनर्स में सोशल सेक्टर में एक ट्रेंड सेट किया है, जिसमें जो है ना वो मोस्टली पीपल वर रिलाइंग ऑन दिस सर्वेज. I think policy element of policy was because we evaluated on that basis. तो इसमें डॉक्टर अतर साहब का पॉइंट भी ठीक है कि पॉलिसी गाइडेंस और उसमें उस तरह रिलेवेंस और बनाने के रिसर्चर को we have to train them or create a culture of research so that people can just link properly. So, being a first round, people have submitted their papers without any long preparations. I think that's why overall quality was not as expected, and might not be very supportive of most of the policies, because from the government perspective, main areas of concern to the government, which are economic problems we are facing, like public sector enterprises or circular debt or these type of problems, are not touched upon. In the second round, specifically invited topics like public financial management, or these topics are catered for. So I hope that learning from the first experience, or just giving specific topics or more elaborated guidelines, we can attract proposal in these key areas, which are areas of concern for the government. It may be development side, it may be public financial management, it may be aid related. So I hope in second round will be more policy oriented than the first one. So thank you. Thank you, Zaf. Iza Aftab. Iza, unmute yourself, please. जी, अस्सलाम वालेकुम. Can you hear me now? जी, बिल्कुल. अच्छा जी. Thank you for giving me an opportunity to chip in this discussion. I think जो अतर साहब के comments थे और जो अहमद के comments थे, those are very valid. But I just want to add on to that. जब हमारे पास ये proposals आते हैं review करने के लिए, तो बहुत सी दफ़ा जो एक कॉमन मिस्टेक होती है, दो तीन है, बट आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ नंबर देम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस टू मी, इज यू नीड टू राइट वेरी सिंपली, because if you can write simply, what you're telling reviewers is that you understand what the actual problem is. Anytime you're going to write in very flowery language for which I need to reach for a thesaurus or a dictionary, you're in trouble. And this is something that I've seen more in Pakistani researchers than anywhere else. So it's very, very important to write simply. जो आपने कहना है उसको simply कहें, use short sentences so it's easier to keep track of the point that you're trying to make. So एक तो ये चीज़ थी, because when you write in poorly, what's happening is that the reviewer now has to spend twice the amount of time to figure out कि आपका point क्या है. And that just goes to your disadvantage. So एक तो ये चीज़ है. दूसरा, whenever you're writing a proposal, and this is for all the people who are here and who are not here and listen to this later, with every sentence that you add, you need to ask yourself why. And like no sentence should not be subject to that query. Why is this sentence important? How is it that this sentence makes your point or makes you get through to the next round? ये दो चीजें बहुत important है. Make it easy for people to read. The third thing, and I'm just sort of building up on what Athar Saab originally said, is there were very, very few proposals that had a good literature review.
there's a difference between having a lit review and a good literature review. So it's very important for all the folks who are here to understand कि आपकी जो literature review है, it has to sort of build the stage for your research question. So जो अभी पहले भी बात identify की गई थी कि आपकी research question, आपकी research methodology इतनी बहुत से proposals में driven out नहीं थी, तो उसमें भी अगर आपका lit review सही हो, we get this very limited space. But अगर lit review सही हो तो it gives the reviewers the chance to sort of give you the benefit of doubt that you do somehow get part of the problem. So that's number 2. My big concern with a lot of proposals was budgeting. Some I thought were severely under budgeted, some I thought were severely over budgeted, and you might write the best research problem, but if your budgeting is poor, then you're in trouble. Also, if you're an economist and you're struggling with budgets, that's going to raise a lot of red flags, particularly for the Rasta grant. And I think it's also important to sort of keep track of the themes. At the end of the day, you're trying to figure out how to bring in social transformation. See what those words mean to you. Also see what it means to folks at PIDE, and then see where the overlap is. And if there are these small things, because there were some proposals which I felt were on the margin, right? So these couple of things will really help people polish those things. So yeah, those are my 2 cents. Thank you. Thank you, Iza. Zahid Asghar, I saw your hand raised. Zahid? Thank you. Thank you very much, Dr. Saiba. So, thank you all of you. और वाकई ये बात बड़ी जो है वो खुशाइंद है कि इस वक्त हम रात 7:30 बजे 8 बजे बैठ के तो we are thinking over these things. This reflects a lot कि PIDE जो है वो कितना serious है about these issues. तो जो सोसाइटी फेस कर रही है, जैसे जफर कह रहे थे, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, 4-5 चीजें जो कि अतर साहब ने भी और बाकी कॉलीग्स ने भी मेंशन की हैं. बजटिंग, नो डाउट कि इट सीम्स, मुझे कुछ प्रपोजल में ये लगा कि थीसिस कॉपी एंड पेस्ट हुआ प्रपोजल में, और जस्ट जो है वो पीआई और को पीआई जो है वो अपनी सैलरीज उन्होंने लिस्ट कर दी. तो काइंडली जो लोग प्रपोजल फाइल करने जा रहे हैं, अगर उन्होंने थीसिस को भी प्रपोजल बनाना है तो प्लीज ब्रिंग समथिंग न्यू. उसमें बाकायदा रिकमेंडेशंस भी गिवन है, सारा कुछ गिवन है, और लग रहा है कि ये प्रपोजल जो है वो फाइनल हो चुकी है, हर चीज हो चुकी है. देन एक चीज जो फर्क नहीं की जा रही वो पर्सनल कन्विक्शन और जो एविडेंस बेस्ड आपने अभी एनालिसिस करना है. यानी कि प्रपोजल में पर्सनल कन्विक्शन इतनी डोमिनेट कर रही है कि इट सीम्स कि जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं वो आपने कहना ही कहना है, इररिस्पेक्टिव एविडेंस क्या आएगा. तो जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें क्लैरिटी जो है वो उस तरह की नहीं है, बिग थिंकिंग वो नहीं है. देन जैसे अहमद पीरजादा साहब कह रहे थे कि उस बिग थिंकिंग को या उसको कैसे आपने मटेरियलाइज करना है, वो बात भी लैक कर रही है. ऑब्जेक्टिव्स जो है उनमें जैसे अतर साहब ने कहा, क्लैरिटी और उसकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगी वो. तो ये 3, 4, 5 चीजें हैं जिस पे मैंने, जो मेरे पास प्रपोजल्स आई उनको मैंने इवेलुएट किया कि क्या रिसर्च क्वेश्चन क्लियर है. फिर जो अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी में, इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इतना ह्यूज मैसी डेटा पड़ा हुआ है, पीडीएचएस, पीएसएलएम, मिक्स, कोई बंदा उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा. हर कोई ये कह रहा है मैं एक डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ मिक्स रिसर्च मेथड्स. भाई वो डेटा जो आप एक जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग की बेस पे लेने जा रहे हैं, इज इट मोर वर्थ देन जो डेटा हमारे पास एक बड़े प्रॉपर जो है वो वे से कलेक्ट है. तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने सेकेंडरी डेटा के यूज को कहीं पे यूज करते हुए. थर्ड, फाइनली मैं इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो बाद में हम किसी वक्त कर सकते हैं. जो हमारे रियल इश्यूज हैं उसकी तरफ जो है वो लोगों ने कम एफर्ट किया है, वो पैशन नजर नहीं आ रहा कि इट सीम्स कि अच्छा आप कोई जो है वो जस्ट कोई गेन, मॉनेटरी गेन है या उस वजह से है. वो एक पैशन जो है कि जी हम किसी इकोनॉमी के इश्यू को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, उस तरफ हमें स्टेप लेना होगा, उन प्रपोजल्स को जो है वो ज्यादा प्रमोट करना होगा. थैंक यू. मेरे यही कमेंट्स. थैंक यू जाहिद. जुनैद आलम. अस्सलाम वालेकुम. सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है तो बियर विथ मी.
जो भी अभी तक कहा गया, आई थिंक आई वुड ओनली पार्शियली एग्री टू दिस। जब हमने ये रास्ता शुरू किया था प्रोजेक्ट, तो उस वक्त आइडिया ये था कि हम सोशल साइंसेस का प्रोफेशन बिल्ड करेंगे पाकिस्तान में, और उसमें जो मेन एक चीज थी वो कैपेसिटी बिल्डिंग का एलिमेंट था। उस हिसाब से अगर मैं जैसे प्रपोजल को एवेल्यूएट कर रहा था, 20 के करीब मुझे मिले, मैंने 15 तो पहले ही राउंड में रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन स्टिल जो मैं चीज देख रहा था वो ये नहीं देख रहा था कि कामा फुल स्टॉप सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, एक्चुअली उसमें पोटेंशियल है इम्प्रूव करने का या नहीं है। तो जो ज्यादा मेरी ऑब्जर्वेशन थी, या जो मैं चाह रहा था कि सेकंड राउंड में शायद हम बेहतर कर सकें कि मिनिमम एमफिल उस बंदे ने किया हुआ हो, क्योंकि मेरे केस में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी ऐसे प्रपोजल थे जो शायद एमफिल के प्रपोजल थे किसी एनर्जी डिपार्टमेंट के, और वो सारे जो है ना, एक ही बंदे ने 3-3, 4-4 प्रपोजल सबमिट किए हुए थे किसी डिफरेंट नाम से, स्टूडेंट के या कैसे। तो प्रपोजल कमजोर होना, लिखा हुआ कैसे होना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो जो आइडिया पिच कर रहा है उसमें कितना स्पार्क है। मैं शायद उसको देख रहा था, और मैं समझता हूँ कि अगर कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायर्ड है तो हमें थोड़ा बहुत लोगों को नर्चर करने की तरफ सोचना होगा। बाकी ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज हम एक्सपीरियंस रिसर्चर को देना है, तो फिर देखें क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होना चाहिए एवेल्यूएशन का। तो मैं समझता हूँ कि कमजोर प्रपोजल होना इतना प्रॉब्लमेटिक रिव्यूअर के लिए नहीं होना चाहिए, जितना उसमें कितना स्पार्क है और वो कितना डेवलप हो सकता है, बंदे ने जान कितनी डाली है। अगर वो अच्छा रिसर्चर होता तो फिर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत क्या है। सो मैं समझता हूँ कि इस तरफ हमें देखना चाहिए, और ये इनिशियल आइडिया था जो अब हमने रास्ता शुरू किया था। जी जुनैद, इसीलिए हर प्रपोजल के साथ जो है वो मेंटोर्स भी है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में रैक से हमने थोड़ी बात कर ली। जितने भी यहाँ अवॉर्डीज हैं या एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 के लिए अप्लाई किया था, और उनमें से कोई बात करना चाहता है, प्लीज अपना हाथ खड़ा करते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। अहमद जमाली, आपका जो एक्सपीरियंस रहा राउंड 1 में, कुछ अगर उसमें आप सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी। जी, दिस इज हमीद जमाली, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस राउंड ऑफ रिव्यूज जो आपने प्रेजेंट किया, बट आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स जो कही गई दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग कि यू थिंक पीपल आर वर्किंग फॉर दीज प्रपोजल फॉर पर्सनल गेन्स, और इस तरह के लफ्ज यूज करना, आई थिंक दैट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग। वी ऑल हियर टू डू गुड रिसर्च, तो इस तरह के जजमेंट देना इज नॉट वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ जो कितने लोगों ने एफर्ट किया और सबमिट किए प्रपोजल्स। फर्स्ट दैट थिंग, so that should be clear कि we are not here for personal gains, we are here to do good research. अच्छा, सेकंड पार्ट एक ये था कि I did not get for example आपके 72 रिव्यू जो प्रपोजल थे वो सेकंड स्टेज पे चले गए, तो सेकंड स्टेज पे एटलीस्ट you should have given us kind of individual reviews, because I put my heart and soul in it, and it's a very good proposal, sound proposal in terms of research methods, but I did not get any response whether it was rejected because it was not relevant or because of the budget, or दूसरा budget का element. I mean, I have done research all over the world. मैं बाहर भी रहा हूँ, हर जगह की है, recently now I'm in Pakistan. But the budget is the last thing that you see in the proposal. First is how it is technically competent, relevant है, नहीं है, कितना है. Budget can be discussed later. I mean, that rejecting it based on a budget कि वो 2-3 लाख ऊपर डाल दिए, I think that's not fair. And the second part, I did not get whether my proposal was not relevant or why it was rejected. So at least the second जो stage पे चले गए थे, they should have been given some personal reviews. Thank you. ठीक है हमीद, हम अपना फहीम, इनका नाम नोट कर लें। बहुत सारे लोगों ने हमसे जो सेकंड राउंड में नहीं आगे जा सके थे, कमेंट्स मांगे थे, हमने भेजे थे, आपने प्रॉब्ली नहीं मांगे होंगे, आपको मिल जाएंगे। और बजट की बेसिस पे कोई प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हुआ, ये मैं बहुत आपको क्लियरली बता रही हूँ। बजट हमने नेगोशिएट किया अगर हमें किसी में प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन नो प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। इफ देयर वाज अ गुड प्रपोजल, we negotiated the budget, but no proposal was rejected on the basis of budget. Aziz Ahmed. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam.
one of the awardee of this Rasta round 1. तो जो मतलब thanks to the all team के जो ये इस वक्त राउंड टेबल जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने जो है वो कंडक्ट किया है लर्निंग के हवाले से, थोड़ा बहुत जो न्यू सेकंड कॉल फॉर प्रपोजल उस हवाले से कुछ जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है लर्निंग के हवाले से शेयर करो, जो रास्ता की वजह से काफी हद तक हमारे जो प्रपोजल थे वो इन लाइन हो गए और आउट ऑफ मतलब 202 में से जो है जो विनिंग अवार्डीज उसमें शामिल आ गए थे। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव जस्ट सबमिटेड माय प्रपोजल, इट हैज इट्स स्कोप टू लार्ज, काफी वाइड स्कोप था, क्योंकि जो टाइटल था जो मैंने कॉइन किया था वो था स्किल्स मैपिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, डबल कॉलन जॉब क्रिएशन। अजीज आपकी आवाज नहीं आ रही। सादात को ले लें उस टाइम तक, फिर दोबारा अजीज के पास। सादात ने जिस सीक्वेंस में हाथ खड़े किए मैं बेसिकली उसी में जाना चाह रही हूँ। फहद अली। यस जी बताइए फहद। जी Assalamualaikum. Thank you very much. This is really useful. और हमें I think के next round के लिए जब apply करेंगे तो we have received a lot of good information from the reviewers. I think मैं जो अभी एक थोड़ा सा sentiment express हो चुका है कि I just want to second that कि जो इतने strong words को use करना के proposals जो थे वो इस काबिल नहीं थे, इनको देखा जाए, I mean you know proposals also emerge in a certain kind of social and academic context, right? So if you want to have you know really good top-notch proposals as perhaps one see in other parts of the world, तो उसके लिए उस तरह का सिस्टम भी चाहिए कि वो उस तरह के रिसर्चर्स प्रोड्यूस कर सके। सो आई थिंक ये इस तरह के कमेंट्स देना जो है वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जुनैद साहब ने जो बात की कि अगर रिसर्चर्स यहाँ पे सब अच्छे होते और उनको सपोर्ट की जरूरत ना होती तो व्हाई वुड वी हैव स्टार्टेड समथिंग लाइक रास्ता। आई डू वांट टू से समथिंग अबाउट ये सर्वेस के ऊपर कि अगर इसके ऊपर एक सेंटिमेंट मुझे ये लग रहा है कि जी जिन लोगों ने सर्वेस प्रपोज किए उनको डिस्करेज किया जा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग सर्वेस गवर्नमेंट के मौजूद हैं, जो हाउस होल्ड इनकम इकोनॉमिक सर्वे है, PSLM का सर्वे है, मिक्स का सर्वे है, ये सारे के सारे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत रिच सर्वे सेट्स हैं, राइट? बट दे ऑल्सो जो रिसर्च है वो अगर आप सर्वे के ऊपर डिपेंड करेंगे तो यू आर ऑल्सो लिमिटिंग इट, यू आर ऑल्सो पुटिंग सम कंस्ट्रेंट इनटू इट। मैं हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे के तहत या PSLM सर्वे के तहत ये नहीं जान सकता कि पाकिस्तान के अंदर फर्म लेवल के ऊपर टेक्निकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? सो अगर मैं एक प्रपोजल देता हूँ कि जी अच्छा पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर या मिड लेवल की फर्म्स के अंदर या लार्ज लेवल की फर्म्स के अंदर अगर मैंने इसको स्टडी करना है कि टेक्निकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है या किस किस्म का है, उसकी नौयत क्या है, उसके पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, तो मैं रिव्यूअर से एक तो सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन सा सर्वे है जिसको मैं देख सकता हूँ, ठीक है? सो जो लास्ट टाइम जो सर्वे जो आमतौर पे जिस सर्वे को देख के ये सवाल होते थे सेंसस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो उसकी आखिरी वेव आई थी 2005 के अंदर, उसके बाद से 15 साल हो गए, अभी तक वो डेटा नहीं निकला। तो जब आप और ये कह देना कि जी अच्छा ये सर्वे का क्वेश्चन है, तो ये इन व्हाट सेंस दिस एक्चुअली डज नॉट स्पीक टू द करंट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, इन व्हाट सेंस दिस एक्चुअली डज नॉट। अब 40 लाख रुपए के अंदर अगर कोई बंदा प्रपोज करेगा तो वो कितना को बड़ा सर्वे कर सकेगा ना, कितना को ज्यादा वो रिप्रेजेंटेटिव सर्वे करेगा। सो इट इज गोइंग समबडी हु इज गोइंग टू डू इट्स गोइंग टू रियली स्मॉल एक्सरसाइज। सो आई थिंक ये चीजें जो हैं, ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं, ये सिर्फ रास्ता फील नहीं कर रहा, पाइट फील नहीं कर रहा, इट्स आल्सो दे आर आल्सो फेस्ड बाय द पीपल हु आर एक्चुअली प्रपोजिंग एग्जैक्टली। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग क्योंकि बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं और नहीं जी प्लीज आई हैव टेकन मोर टाइम देन आई शुड हैव। नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि रैक जो है अभी फहीम से इसीलिए मैंने कहा था कि जरा उस नाम दिखाएं। रैक में 20 से ज्यादा लोग हैं और उसमें पाइट के सिर्फ 4 लोग हैं, 5 लोग बल्कि, मेजॉरिटी जो है वो आउट ऑफ पाइट है इसी तरह की। इसलिए और अगर आपको ये लग रहा है कि जी जिन्होंने कोई फील्ड वर्क जो है सजेस्ट की हुई है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेप्लिकेशन को डिस्करेज किया जा रहा है। मतलब अगर कोई ऐसा डेटा सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी हेल्प ली जा सकती है और कोई उसी तरह का फिर से सर्वे करना चाह रहा है, हाँ उसको जरूर
नहीं एग्जैक्टली कहा जाएगा कि हाँ जी फिर से वही चीज जाके पूछ लो, लेकिन जो आपने बात की है डेफिनेटली वो एक बहुत पुराना सर्वे, अगर कोई उसको करना चाहेगा नोबडी वुड से कि जी ये कोई रेप्लिकेशन है। आप प्लीज अपने कमेंट्स जरूर मांगिएगा, उसमें फील्ड वर्क करना डेफिनेटली रीजन नहीं होगा अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सिंस सारी जो रिव्यूज हैं वो एनोनिमस थे, इसलिए बहुत सारों के इवन मुझे यहाँ नाम फेमिलियर नहीं लग रहे हैं। मीर सादत बलोच, फहीम आप इनका नाम भी लिख लें प्लीज, आपने इनको इनके कमेंट्स भेजने हैं, वो अगर चाहे वो फर्स्ट राउंड में निकले थे चाहे सेकंड में। बिल्कुल ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि जब शुरू में अक्सर मुझे जब कोई भी ग्रांट प्रपोजल का वो आता है, जब हम उसको कॉल को देखते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स। लेकिन इस पाइड वाले जो इनका आप लोगों का जो ग्रांट था उसमें अप्लाई करने की जो सबसे मेन वजह थी वो ये थी कि इनकरेजिंग प्रोसेस था बड़ा आपका, जो आप लोगों ने 2 जिसे कहते हैं ना कि सेमिनार्स किए थे एप्लीकेंट्स के साथ, जिसमें आपने उनको बहुत क्लियरली हमें ये समझाया कि जी क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके से चीजें चाहिए, और जो प्रोसेस था, और मेरे ख्याल से कि ये प्रोसेस ऐसे था कि इसको अगर कोई कह सकता है कि जी वो ऑनेस्ट नहीं था या हार्श था या जो कुछ था, वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, बट इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस एंड अ थॉरो लर्निंग प्रोसेस था। और मैं तो यही कहता हूं कि जिसे कहते हैं कि मैंने हालांकि उस दिन भी अपनी बात की थी, मैंने कहा था कि मैंने भी ये फील किया कि हम थोड़ा क्वालिटेटिव साइड को इतना इनकरेज नहीं करते थ्रू आउट पाकिस्तान, ये इशू थोड़ा सा है। लेकिन बात यही है कि दिस ऑल इज अ लर्निंग फेज, और यहाँ पे अगर मैं सम अप करूं जो रास्ता के जो भी कमिटमेंट वगैरह है, तो वो लोग जिसे कहते हैं कि एक ऑनेस्टी ज्यादा थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। ये बात नहीं थी कि किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज भी वही लर्निंग प्रोसेस अभी तक चल रहा है, हमारे लिए भी चल रहा है और जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सादत, और आप यकीन करें कि ये लर्निंग हमारे लिए भी चल रही है। असदुर रहमान। या थैंक यू मैम। मैं सिर्फ इस पे जो है ना वो एक आई मीन I just wanted to share my experience building on I agree with Dr. Junaid because first when I read that advertisement तो उसका ये था कि you should come with ideas, लेकिन अब जो मुझे कुछ उसके कमेंट्स किया I got the comments at the end, मतलब मुझे वो दूसरे रास्ता के कमेंट्स मिल गए थे, उसमें ये लग रहा है कि जैसे आई मीन दे आर आस्किंग देयर यू नो रिव्यूअर्स आर एक्सपेक्टिंग कि हम जो है ना वो रिजल्ट्स के साथ भी पहले ही आ जाएं प्रपोजल में ना कि रिजल्ट्स क्या होंगे। तो फिर अगर रिजल्ट्स पहले एक आधा प्रपोजल बिल्कुल इसी बेसिस पे रिजेक्ट हुआ है कि वो पहले ही रिजल्ट्स के साथ आए हुए हैं। ओके अच्छा, लेकिन इसमें ओके मैं बस सिर्फ इसमें एक जो मेरी एक मतलब सबमिशन है वो ये है कि बिकॉज जब हम थर्ड स्टेज पे गए तो जो कमेंट्स हमें अब मिले हैं ना, अगर वो आपने मतलब मिसाल के तौर पे मेरे प्रपोजल में जो रिजेक्शन के ऊपर एक वो उन्होंने जो किया था उसमें ये था कि जी यू डोंट हैव फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डाटा, ठीक है, डोंट हैव योर क्वेश्चन इज क्लियर, एक कमेंट है हाउ यू आर गोइंग टू लिंक द इंडेक्स विद दैट। ओके, अगर आपने ये कमेंट्स हमें सेकंड स्टेज पे देते और उसके बाद आप हमसे पूछते जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप हमसे पूछ रहे हैं कि नाउ रैशनलाइज योर आर्गुमेंट और रैशनलाइज योर प्रपोजल, सो आई थिंक वी हैव अ बेटर चांस टू एक्सप्लेन दीस क्वेश्चंस रादर देन कि आप जो है जो पहले वाले इसमें आपको मैं बताऊं कंफ्यूजन आपका क्योंकि मुझे याद है लोगों, ये मेरा हमारा पाइट का स्टूडेंट है इसलिए इसका मुझे नाम पता है और ये नाराज भी ज्यादा होता है इसलिए भी पता है। असद आपकी कंक्लूजन ये थी कि ये इसको रिवाइज करके रीसबमिट करें, और ये सब जितने भी लोगों के रिजेक्ट हुए हैं मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि उनको जो कमेंट्स मिले हैं उनकी लाइट में जब भी उनसे रेलेवेंट थीम आएगी, प्लीज ये ना कीजिएगा कि अगले वाले की थीम बिल्कुल कुछ और आप भेज दें, क्योंकि ये वाली थीम्स फिर से भी आएंगी जो राउंड 1 में थी। हम सिर्फ फोकस ढूंढने के लिए इस दफा हमने जो है थीम्स को थोड़ा कम किया था क्योंकि इतने वो वेरिड आ रहे थे और उनमें फोकस नहीं था कोई। तो असद आपको जो मिले हैं आप प्लीज अपना प्रपोजल जो है उस स्लाइड में रिवाइज करेंगे, और जब फिर से हम कोई सिटीज या अर्बनाइजेशन वाली थीम लाएंगे तो आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं।
Yeah, exactly. मतलब I'm not complaining, sorry. I think maybe आप इसको समझे. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें थर्ड स्टेज पे अगर जो नेक्स्ट पे भी आते हैं ना, तो मेरे ख्याल में हमें ये कमेंट्स पहले अगर स्टेज पे दे दें, क्या जो जिनको आप सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, तो उनसे पहले अगर आप कमेंट्स दे दें तो आई थिंक इट वुड बी बेटर. That was my suggestion basically for the next. ये already noted है. ये is a very good point. Actually जो वर्कशॉप के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे हम उनको कमेंट्स दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे. Yeah, thank you. And now I've lost the sequence. I think it was Dr. Rizwan next. जुनैद आप प्लीज अपना हाथ नीचे कर दें. इस वक्त मैं अवॉर्डीज और एप्लीकेंट से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं. हाँ जी, डॉक्टर रिजवान. Hello, Assalamu alaikum to all. Thank you so much for organizing this very good event, especially for the applicants that we have learning about this points that how round one is happened. Actually, I also didn't receive any comments, although it was on the first phase. I was dropped. I have applied in the round first. And I think the main thing, this is the main thing that we didn't receive the comments if someone other received, but I didn't receive. The second thing is about the time period. 1 year, although is good for time, for short term, but how we can be suggested that it should be from which period, from which year to which year, of which month to which month, because when we have to apply for the research proposal, there should be mentioned that when we have to start. It is not mentioned in the advertisement that when you are going to start this time period and when we have to, so that we have other projects, so we can manage, if we are able to manage this time, so we can do that project very clearly and better, I think. Rizwan, the 12 months is not a calendar here. वो आपके project के 12 months हैं. Whenever you are starting, वहाँ से आपके 12 months शुरू होंगे. Okay, that's very clear. Now वो एक calendar here है. It's your 12 months. And as far as getting the comments for round one is considered, round one में किसी को भी नहीं भेजे गए थे. वो मतलब 200 plus थे. सिर्फ अगर किसी ने मांगी वजह तो सिर्फ उसको भेजी. उसके बाद वालों को मिले थे. आपको अपना फहीम इनका नाम भी लिख लें. जी, थैंक यू सो मच. ओके जी. मुर्तजा, आई एम सॉरी मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ. डॉक्टर मुर्तजा SAH मुझे सिर्फ नजर आ रहा है. मुर्तजा सही तो, डॉक्टर मुर्तजा सही तो. Yeah, thank you very much. Yes, it's Dr. Murtaza Sahito from Agriculture University Tandojam. Actually, I'm a potential participant for round 2. I did not apply for round 1. लेकिन कुछ असल में मैं रिलेक्टेंट हूँ थोड़ा रिसर्च प्रपोजल जमा करवाने से कहीं पे भी. उसके कुछ रीजंस हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड है. बैकग्राउंड ये है कि मतलब we do not get the comments back. रिव्यूअर्स के कमेंट्स मतलब समटाइम्स कमेंट्स मिलते हैं. अभी रिसेंटली मुझे HEC का एक मेरा GCF में प्रोजेक्ट सबमिट था, उसमें मुझे कमेंट्स मिले हैं जो कि मतलब बिल्कुल सिली कमेंट्स हैं और उसमें जो है एज सच कोई उसमें वो ऐसी चीजें नहीं पूछी गई हैं हमसे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं रेज किए गए जिनके हम शायद हम डिफेंड कर पाते जिनको. एंड दैट वाज मतलब ऑफ कोर्स मैं तो अपने प्रपोजल के लिए यही कहूँगा कि इट वाज वेरी फाइन प्रपोजल. ठीक है. एक और यूनिवर्सिटी ने जो है प्रपोजल मांगे, वहां पे मैंने सबमिट किया. आई डिड नॉट रिसीव एनी कमेंट एक्सेप्ट रिजेक्शन, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट टू नो कि उसी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने वही प्रोजेक्ट जो मेरा प्रपोजल था वो रेप्लिकेट किया है. सो आई वाज वेरी रिलेक्टेंट. और मैं एग्री करूंगा जुनैद साहब की बात से और दूसरे जो कलीग्स ने भी बात की. एटलीस्ट जो एप्लीकेंट हैं उनको कमेंट मिलने चाहिए और मैं समझता हूँ उनको मौका भी मिलना चाहिए कि वो उसको रिफाइन करके विद इन लिमिटेड टाइम वो उसको जो है फिर से जमा करवा सके. कैपेसिटी बिल्डिंग अगर करनी है तो यू गिव देम एटलीस्ट गिव देम वन चांस. थैंक यू वेरी मच. सर ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एटलीस्ट 5 केस में आपका प्रपोजल कोई चुरा नहीं रहा होगा. मतलब दैट्स द वर्स्ट क्राइम यू कैन डू विद एनी पर्सन रिलेटेड टू एकेडमिक्स. और कमेंट्स फहीम प्लीज सबको कमेंट्स भेज दें.
लेकिन 200 से ऊपर हमें प्रपोजल्स मिले थे। इन एनी केस सारे तो एक्सेप्ट हो नहीं सकते थे। और जहाँ तक रिविजन की बात है तो वो मैं सबसे कह रही हूँ कि जिनके भी रिजेक्ट हुए हैं, इट डज नॉट मीन कि वो सेम जो प्रपोजल है उसको रिफाइन करके किसी नेक्स्ट राउंड में नहीं भेज सकते। वो वाली ऑप्शन हमेशा ओपन है जब भी वो वाली थीम जो है वो फिर से अनाउंस होती है। प्रोफेसर डॉक्टर अरबेला भुट्टो। Thank you very much for giving us the opportunity to be together here. In fact, I would like to put up some questions for my learning, because if I'm interested to put up again proposal for your next round. My in fact project was went through round 1 discussion, went through round 2 discussion, and then I had a chance to present it into the workshop too. After that, I was being assigned with the mentors, and I had like online discussion with my mentors. One was from HEC and another was Dr. Dr. Athar Usman. Yeah, Osama. And so we had very, very concrete discussion during our online session. And I was concerned in a way because the comment that I got, that gave me a bit alarming message. When we talk about any policy development, we definitely look for some evidence collection. We definitely look that whatever we are going to do, we have some reason to validate our findings. And then after validation, we are in that position so that we can give at least one recommendation to our national policy. I mentioned very clearly that whatever the work I'm going to do, it was for the capacity development. It was about to be contributed later on into the Ministry of in National Science, Technology, Innovation Policy, which is upcoming in 2021. Because I'm also a partner, I'm also a committee member of National Science, Technology, Innovation Policy, which is still going on. It's in a flourishing process. But I wanted to do in parallel the work that I have put up, work that I've in fact developed already, and I wanted to go for the validation of that work before giving a concrete recommendation to policy, that some work has already been carried out, some data have been collected, some data which is in fact an evidence-based, which was for validation purpose, and now I'm going to recommit for the national policy for science, technology, innovation. But the comment that came to me, it was saying that your proposal is something that is going for validation. And because it's going for validation, it cannot be considered for this RASTA project. So my concern here, or my clear-cut question for all the RASTA team members, which I really appreciate all the hard work that you have really put up to, my question to RASTA team is, either we are allowed to go for application-oriented research or problem-oriented research or not, or we are only looking for a very disciplined way of literature review, disciplined way of reaching to research gap and not really bringing into the field. So this is something that's really was right, it raised my ears. I just wanted to know what kind of proposal, in fact, Rasta team is really looking forward for. Okay, yeah, I mean, that's quite a heavy question. We'll answer this in the end because that's what we'll get to after the this session, this segment with the applicants. Bilal Afridi. Bilal sir, go ahead. Your mic is unmuted. मैडम बिलाल साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा सही। अजीज अहमद। नहीं। बशीर अहमद। Bashir Ahmed? Yeah. Yes, is my voice audible? Ji, it's audible now. Yes. Just रास्ता learning के हवाले से एक दो points I would like to share with all the participants, especially. आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी? Yes, I have mute. ठीक, सही है जी, बताइए. Okay, thank you. Just to share actually to the Rasta call for two applicants learning के हवाले से. First of all, when I have submitted my proposal, it has a wide range of scope. तो जो different pages रास्ता के especially जब workshop हो गए थे last में, इससे पहले जो दो
ब्लाइंड रिव्यूज हुए थे, उसकी कमेंट्स के बेस पे जो है मुझे मतलब ठीक ठाक रियलाइज हुआ और मैंने ये चीज जो है वो लर्न की कि वाकई इसका स्कोप जो था वो बड़ा था, क्योंकि जो काम करना चाह रहा था वो स्किल मैपिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जॉब क्रिएशन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो वो काफी था। अब दो चीजें जो है दरअसल में न्यू जो मतलब इस रास्ता लर्निंग के बाद जो है जो कॉल प्रपोजल जो अभी एप्लीकेंट्स थे सेकंड कॉल के लिए उसको जो है मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि मतलब जिस तरह प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब ने जो है मेंशन किया था कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें उससे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स निकालने चाहिए, दैट शुड बी एसिमिलेटेड टू द टाइटल ऑफ योर स्टडी, और वो पॉलिसी ओरिएंटेड हो या सोशल या इकोनॉमी से रिलेटेड जो है किसी मसले का जो है सोल्यूशन जो है वो मतलब किसी हद तक जो है उसकी मतलब सोल्यूशन उससे मौजूद हो। दूसरी बात ये कि मतलब टाइम को जो बेसिकली 1 ईयर है और दूसरी तरह मतलब जो 1 ईयर टाइम प्लस जो फाइनेंशियल मतलब कांस्टेंट है दैट इज अप टू 4 मिलियन, उनको जो है वो देखते हुए तो जो स्कोप है वो दरअसल नैरो डाउन कर देना चाहिए इन अ सेंस कि मतलब ये जो दो कांस्टेंट है अपनी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ओवरऑल मतलब रिसर्च प्रपोजल का, विद इन दीज टू कांस्टेंट अगर ऑप्टिमाइज हो सकता है इन अ शेप ऑफ राइटिंग गुड रिसर्च प्रपोजल, तो एक्चुअली ये चीज जो थी वो बेसिकली मैंने सीख ली है थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस टिल नाउ। थैंक यू। शुक्रिया अजीज। बशीर अहमद। हेलो, जी आई एम ऑडिबल? जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा, मैंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था तो मुझे वो रिजेक्शन ही आया था। थोड़ा सा मुझे उसके बाद मैंने जो प्रोफाइल वगैरह आप लोगों के जो रिव्यूअर्स के प्रोफाइल वगैरह चेक किए, थोड़ा सा उसमें मुझे ये चीज़ लगा कि जी आप लोगों के सारे वो जो रिव्यूअर्स हैं ना वो सारे एरियाज को थीमेटिक एरियाज को कवर ही नहीं कर रहे, स्पेशली सोशल साइंसेज में। वो इकोनॉमिक्स ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स के, तो स्पेशली जैसे सोशियोलॉजी वगैरह की हम बात करते हैं वहाँ पे एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का अगर एक आध बंदा है, लेकिन वो भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी उनकी भी जो एक रिसर्च की जो माइंडसेट है ना वो सोशियोलॉजी से टोटली डिफरेंट होता है। तो उस बेसिस पे जो टॉपिक जो टाइटल जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करते हैं जिसे सेंसिटाइज होते हैं उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें मसला ये होता है कि वो अपने एक माइंडसेट से वो सारी चीजें सजेस्ट करते हैं, चूंकि वो रिव्यूअर है इज फुल अथॉरिटी कि जी वट एवर ही से कि दैट इज राइट, वो सजेस्ट करता है। और दूसरी आपकी जो मेथोडोलॉजी पे वो बहुत जर्नलाइज आपके कमेंट्स में थे, रिवाइज मेथोडोलॉजी जो कमेंट्स भी आए तो वहाँ पे बताते नहीं कि मेथोडोलॉजी क्यों मैं रिवाइज कर लूँ, उसमें क्या क्या गैप्स है क्या इश्यूज है, वो अपनी सारी चीजें डिटेल से दी हुई। तो बड़े एक मुझे थोड़ा सा इशू है इस हवाले से कि आप अपनी जो यार रिव्यू को थोड़ा से आपका फर्स्ट राउंड में निकल गया था? अभी मुझे नहीं पता कि फर्स्ट राउंड में निकल गया, सेकंड रो में सेकंड उसमें निकल गया वो, उसके बाद जो 70 वो सेकंड उसमें वही इनका देख लीजिएगा, अगर कोई डिटेल वाले कमेंट्स हैं तो प्लीज भेज दीजिएगा। अच्छा नहीं मैडम, थोड़े से आप ये भी ना कि रिव्यूअर्स को थोड़ा सा ओपन रखिए, आपके जो पैनल पे रिव्यूअर्स बहुत ओपन है, मतलब आई एम सॉरी ये शायद मैं आपकी ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहूंगी। उसमें सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, डेमोग्राफर्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट ज्यादा हैं, पाइट इकोनॉमिक्स का इदारा है तो उसमें इकोनॉमिस्ट तो ज्यादा होंगे। इवन पब्लिक पॉलिसी आप सोशियोलॉजिस्ट एक बताएं उसमें। यार अगर मैं कहूँ कि मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ तो आप इस पे इतराज करेंगे? फिर ठीक है मैडम, फिर मैं इतराज नहीं। Durre, before I can unable to raise my hand, so I'm just put me in the queue. Huh? This is Amir. अच्छा जी ठीक है। कमलेश्वर लोहानो। Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, thank you. Assalamu alaikum to Rasta team. It's really a pleasure talking to you, and it's really lovely workshop going on. I have just two comments. One, when initially we started this whole exercise and continuous understanding the whole process of proposal writing, it was very motivating, very encouraging, very open, and so many things which were discussed by the experts, which were at this point when I'm listening the comments from the evaluators,
it is not matching what they said earlier. But that might be my gut feeling, and I'm not considering any my previous project proposal experience, but I just feel that evaluation is a very challenging process which you've gone through these 200 applications. Just humble request, please do share comments to all the applicants, at least in few lines, that what are the problems, what are the mistakes, and give chance to all young and old researchers to improve what specifically requirements of your Rasta proposals are. So that will encourage the culture, encourage the professors, faculty, and students to work more and write very specifically on these very important policy issues. So thank you very much for your time, and थैंक यू सो मच। और फहीम, आप सबको भेज रहे हैं कमेंट्स, इररिस्पेक्टिव कि वो जिस भी राउंड में एग्जिट हुआ उनका। और आपने क्या सिर्फ उनको बुलाया हुआ है जिनके नहीं हुए थे? यार किसी को तो बुलाया होता जिसका हो गया होता। जी आमिर दुरानी। जी अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब उर्दू में बात करनी, अंग्रेजी में बात करनी है? उर्दू में करें जी, कि सारा अपने बंदे बैठे हैं यहाँ इस वक्त, कोई भी आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, तो मैंने सिर्फ पूछना था, ये मेरा कमेंट जो है ये डॉक्टर अराबेला के मतलब मुनासबत से मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये एक्शन रिसर्च की कोई गुंजाइश नहीं दे रहे आप लोग। मतलब मुझे जो पिछली दफ़ा जो प्रपोजल एक मतलब मैंने डाला था, दूसरा बनवा के डाला था जिसमें मेरा नाम नहीं था, तो बात यह है कि दोनों तरफ, मिसाल के मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मिसाल पर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ हुंजा में, तो अब वहाँ पे हमें ऊपर से रिसर्च की ज़रूरत है जिसके सोशल एंगल्स भी हैं, बट मोर देन सोशल एंगल्स इट्स ऑन एनर्जी। तो हम लेट्स से कोई इस तरह का काम है जहाँ हमें कुछ पैसे मिले हुए हैं लेकिन हम और पैसे लेना चाहते हैं उस रिसर्च को डीपन करने के लिए। तो ये एक मतलब बिल्कुल ऐसी रिसर्च है कि जिसका नतीजा फौरन निकलेगा, डिस्कशन में आएगा। तो इस पे कोई कबाहत है ये डालने की, मतलब ये कोई इसकी कोई क्लैरिटी मिल सकती है? मुझे सॉरी आमिर, आपका एग्जैक्ट सवाल नहीं समझ आया कि मतलब एड ऑन के तौर पे यूज हो सकता है? उन्होंने सवाल ये पूछा था कि आपकी जो जितनी हमने देखा है बाय, क्योंकि मेरे ही एक दफ्तर के बंदे हैज वन द प्रपोजल डॉक्टर तहसीन, और वो आया नहीं क्योंकि अब उसने जीत लिया है। उसने कहा ना आपकी बातें सुनने के लिए। एग्जैक्टली यही तो फहीम से पूछ रही थी कि नहीं, लेकिन वो फहीम ने बुलाया नहीं। मैं तो कह रहा था फहीम को चाहिए था कि सबको कहे जबरदस्ती कि भाई आओ, मेरे लिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। तो नहीं, मतलब मैं आपको बताऊं, जिसमें मैंने अभी स्क्रॉल किया है, मुझे नवीद अरशद का नाम, फहीम नवीद अरशद वही है ना जो लम्स में जिनका हमने सारा प्रपोजल ऑलमोस्ट चेंज करा दिया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला था। जी नवीद साहब। अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि मेरा ख्याल था, जो मुझे आप लोगों की पहली दफ़ा जब इंगेज किया था आपके साथ, पता लगा था कि ये आप कुछ तामीराती काम करना चाहते हैं, सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं करना चाहते। तो तामीराती काम में ये नहीं कहता कि एकेडमिक रिसर्च तामीराती काम नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही डीप फाउंडेशंस होती हैं जिसके ऊपर इंसानियत, मतलब आप बहुत अजीम लोग हैं, लेकिन कुछ हम लोग हकीर सी रिसर्च कर रहे होते हैं जिसका वक्त के साथ और फिल वक्त ज़रूरत होती है, और उसमें कुछ ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं होती कि हम बहुत बड़े कलाबे मिला के लंबी लंबी इक्वेशनें लिखें, लेकिन वो एक कौमी मसले के लिए इमीडिएट रिसर्च की। मैं समझता हूँ कि पाइट को रेलेवेंट होने के लिए, यानी कि टू बी मतलब उसको अगर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी काम को अगर हमने बरूए कार लाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के भी कुछ प्रपोजल उठाएं। तो क्या इनकी गुंजाइश होगी सेकंड राउंड में? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फिर आप कहेंगे इसकी इक्वेशनें ठीक नहीं है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है। हालांकि पहली रिसर्च पे, बाय द वे, हम सॉरी मैं खत्म कर रहा हूँ, पहली रिसर्च में मैं 3 दफा लिख चुका हूँ ग्रुप के ऊपर फहीम को कि भाई मेरे, हमें कोई वजह नहीं बताई गई कि भाई ये आपने फर्स्ट राउंड में क्यों निकाला है। आपको कमेंट्स, तो हम तो वो एहतजाज करने वाले थे, मुझे क्यों निकाला। सो सॉरी, थैंक यू। लंबी ईमेल किया कहते हैं तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। आज रात को ईमेल में कोई क्राइटेरिया नहीं। अच्छा, उसमें मेरे देखिए, मैं आपको जल्दी से आपको बता दूं, देखिए हमेशा जब आप कोई चीज पब्लिकली एडवर्टाइज करते हैं तो आप प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया वहां पे एडवर्टाइज करते हैं। ये नहीं होता कि दिखा दूं वेबसाइट नहीं। अच्छा, तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया कि आपने उसकी इवैल्यूएशन सबके सामने लगा दी? क्यों नहीं लगा दी? आई मीन ये तो पब्लिक होनी चाहिए ना, ताकि पता हो कि भाई अगर फर्स्ट फेज में कोई निकला है तो कोई मोटी मोटी बात होगी ना, वो मोटी मोटी बात समझ नहीं आई।
आमिर मैं शेयर तो कर सकता हूँ मोटी मोटी बात अच्छा नहीं आपके लिए। ठीक है या ओके यार 1.5 घंटे हो गए, मैं सुबह ऑफिस से भी बहुत थक के आई हूँ। आप चलें, जितनी देर में दिखा रहे हैं मैं उतनी देर इरफान को पूछ रही हूँ। इरफान या अरफान जी थैंक यू मैम। बस वो हम इसलिए खामोश थे कि हमारा हो गया है तो हम जरा बात सुन लें, और काफी सारे लोग गरम से तो इसलिए हम दुबके से। यार कोई बात नहीं, हम वी आर वेरी ओपन टू गर्मी एज वेल, वरना मेरे ख्याल में ये हम सेशन रख ही ना रहे होते। नहीं वो बिल्कुल। तो मेरा भी मैं बल्कि जुनेद से इत्तेफाक करूंगा, और मतलब थोड़ा सा शायद जो मसला फील हो रहा था वो शुरू में जरा बहुत ब्लाइंड कमेंट्स थे, तो वो थोड़ा सा अगर हम वही चीज़ें ज़रा ज़्यादा हम्बल तरीके से भी कन्वे हो सकती हैं और उसको तरह किया जा सकता है। और जुनेद से मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि हमारा मुल्क के अंदर सोशल साइंसेज की जो रिसर्च है, इवन के फिजिकल साइंसेज की रिसर्च की बहुत बुरी हालत है, और डेफिनेटली वो कोई इंडिविजुअल जो है वो पूरे इस माहौल से निकलता है। तो सोशल साइंसेस का तो काफ़ी रिसर्च का फुकदान है यूनिवर्सिटियों में, टेक्निक्स के ऊपर, मेथडोलॉजीज के ऊपर। तो किस तरह से हम इसीलिए वो मैंने सजेशन भी पहले भी दिया था कि, और आपने वो अच्छा किया मेंटोर्स वाला। तो मेरा तो बिलीव है कि रिसर्च जो है वो एक आइडियाज शेयर के साथ रिजल्ट्स को शेयर करते हैं, उसमें आप जितनी ज़्यादा इनपुट हो मेंटोरिंग की, और उसको जितना ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है उसको होना चाहिए। मतलब ये कोई साइलोज के अंदर नहीं हो सकता काम, खासतौर पर सोशल साइंस रिसर्च का। उसको आपको बार बार आइटरेट करना पड़ता है अपने फाइंडिंग को, इनिशियल फाइंडिंग को, रिफाइनिंग और उसको फिनिशिंग स्टेज तक। तो ये आपने बहुत अच्छा किया मेंटोरिंग का। इंशाल्लाह मेंटोर्स के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर पूरा उतरे। तो मेरे तो बस यही कमेंट थे, बाकी मैं लोगों की बातें सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, अच्छा लास्ट है ना, उसके बाद फिर डॉक्टर नदीम बताएंगे कि वो चाह क्या रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इसीलिए आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट राउंड, आई वाज अवॉर्डेड grant, तो इसलिए मैं क्वाइट थी। I didn't want to kind of discredit the opinions of all those people who didn't get through, because it sounds like कि आपका हो गया है तो आपने तो तारीफ करनी है, but very honestly अगर ना भी होता तो I would have at least said one thing about the process, that it was very transparent. I've pitched a few other grants as well, तो कभी-कभी हमें specifically इस तरह की instructions आती थी कि at the workshop, at the review, please do not talk to anybody else, please do not just pitch your idea and leave. तो इस as opposed to this, हमने सब जिन ने applications दी थी, हमने सबकी presentations देखी, सुनी, and if nothing else, I would at least like to laud the transparency of the process. Yeah, that's all I'd like to say. Thank you. Dr. Nadeem. आप हैं? क्या मुझे भी बोलना है? Of I course, didn't realize. बताइए। देखिए जी, I think it's been a very good debate. I've listened to it patiently, and I think it's very good. I think the whole point of Rasta is to establish a dialogue. We must all talk to each other and establish a dialogue. And yes, एक चीज तो बड़ी clear है कि हमारे social science में there's no exactitude. In fact, physical science में भी कोई exactitude नहीं, और quantum theory वगैरह भी आ गई है, और proposal review में तो कोई exactitude नहीं है. Let's be fair. I mean, for example, so many great proposals have been rejected. In fact, ये जो है अपना क्या कहते हैं mRNA भी जो निकल आई है, ये 10-15 साल से this was being rejected in proposals. नदीम आप कहीं Not saying that. हाँ जी, सिग्नल टूट रहा है? नहीं बस अब ठीक है बीच में से। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि प्रपोजल में कोई एग्जैक्टिट्यूड नहीं है. एज आई सेड, mRNA का प्रपोजल पिछले 10 साल से रिजेक्ट हो रहा है, अब फाइनली वैक्सीन में आ गए. ठीक, सो देयर आर सो मेनी प्रपोजल दुनिया में जो रिजेक्ट होती हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट.
बाकी ये है कि जी आई थिंक ये बड़ी सही बात है कि ये इस मुल्क में एक रीत हो गई है, जो पाइड में भी है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ रिजेक्ट करने की, कि प्रोफेसर स्टूडेंट्स के थीसिस पे अपना नाम लगा के पब्लिश करते हैं। आई थिंक दैट्स रॉन्ग, इट शुड नॉट बी डन। स्टूडेंट का थीसिस अपना होता है, प्रोफेसर और स्टूडेंट का कभी कभी इकट्ठा छपता है जब बहुत काम में हाथ हो, बट एवरी प्रोफेसर, एवरी एडवाइजर शुड नॉट पब्लिश with his students. That's wrong, or her students. ठीक है जी? And दूसरी चीज़ है, every advisor cannot use his or her students' thesis for a proposal. I'm not saying all proposals are like that, but quite a few are like that. ठीक है जी? So that's something that should be worried about. I think जो मोटी-मोटी बात है कि हमें आपस में सबको डिबेट करना है कि पाकिस्तान में रिसर्च में क्या चाहिए, क्योंकि हमारी रिसर्च को कोई देख नहीं रहा, हमारी रिसर्च को यूज ही नहीं कर रही हुकूमत। तो पार्टली हुकूमत का कसूर है, पार्टली हमारा भी कसूर है कि हम क्या बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च, मेरा फेवरेट हॉबी और सर्कुलर डेट पे हमने क्या प्रोड्यूस किया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमने क्या प्रोड्यूस किया। एक और चीज है कि डोनर्स ने हमें इस रीत पे लगा दी है कि हम डोनर्स के सवाल देखें बस, कि जी इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन डिजीज एंड ऑन ट्रीज। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिलेशनशिप, कोई क्लैरिटी भी नहीं क्या रिलेशनशिप है। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप पहले से सोचें कि व्हाट इज इट दैट यू वांट योर पीपल टू, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से ऑन पब्लिक पॉलिसी, and then you begin to think about the question. What I found about the proposals was, और मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की रिसर्च में भी ये काफी हो रहा है कि there's a certain artificiality because we are trying to, in a sense, copy donors or trying to think of international journals. हमारे सामने सवाल पड़े हैं, मेरे सामने सवाल पड़े हैं बहुत सारे, और हमने रास्ता के नोट में भी लगाया, हमने PID की वेबसाइट पे भी लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे हमें कुछ बताएं, फॉर एग्जांपल हमें कुछ बताएं कि आपके मार्केट्स क्या हैं, जो हमने भी बताया, एग्रीकल्चर मार्केट्स क्या हैं, रियल एस्टेट बाकी मार्केट्स क्या है, क्या क्यों ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, ठीक है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट 5% ही है जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। अब बहुत सारे लोगों ने जो सवाल पूछे हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कहता कि all are wrong, I'm not saying everybody is wrong. Yes, of course, many of the proposals were worth thinking about, but I think we have to get into the nitty-gritty. Kiji, what is it that we want to say to our policymakers, to our people? What are we going to get out of our research? अगर हमने ये रिसर्च करनी है, एक रिग्रेशन रन कर दिया या एक छोटा सा सर्वे, I've got nothing against सर्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल जरूर होनी चाहिए, पर हमें ये भी सोचना है सर्वे से क्या निकलेगा। नंबर 2 जो चीज मुझे नजर नहीं आ रही वो ये कि हम अपने सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल हम सर्वे कर देते हैं बट वी डोंट वांट टू रीड द, हम ये भी कहते हैं इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, बट जब हम इंस्टीट्यूशंस आर इंपॉर्टेंट कहते हैं तो वी डोंट टॉक अबाउट कि लॉज क्या है, रेगुलेशंस क्या है, हम उनको नहीं स्टडी करना चाह रहे। वी वांट टू कलेक्ट द डेटा विदाउट स्टडीइंग द लॉज एंड द रेगुलेशन एंड वी वांट टू जस्ट रन अ रिग्रेशन। आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉज एंड द रेगुलेशंस, ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट आर हाइपोथेसिस। और जो बाकी लोगों ने कहा है, आई थिंक लिटरेचर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम लिटरेचर रिव्यू बहुत आई थिंक वाज नेग्लेक्टेड। दूसरी चीज वी हैव टू आइडेंटिफाई द थीसिस, क्या थीसिस है, कोई थीसिस है इस मुल्क में कि नहीं, आपका थीसिस क्या, बताएं। And then we have to begin to understand the thesis and debate it. So I don't want to say कि all the proposals are bad. No, of course not. But दुनिया में यही होती है, rejection rate और acceptance rate. और एक और आपको बात बता दूं कि it's obviously subjectivity आ जाती है proposal में. But what I think one of us must want to see कि at the end of your proposal, do we have a goal in sight? क्या हमें पता चलेगा हमारी इकोनॉमी का? अगर वो ही बार बात आनी है कि जी poverty is caused by lack of education, poverty is caused by lack of endowments, तो I think it becomes kind of uninteresting. तो रास्ता 2 में हमने इसीलिए अब काफी pointed question दिए। अब हमें पॉइंटेड क्वेश्चन में बताएं कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। हमें बताएं रियल एस्टेट मार्केट, बड़ा लोग शोर मचाते हैं, ये मार्केट है क्या, जरा इसके रूल स्टडी करें, जरा इसका तरीकेकार स्टडी करें कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी राइट है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें ट्रेडिंग के मेथड्स क्या हैं, इसमें एजेंट्स कौन है, इसमें क्या है। तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केट्स में हमने कहा है, अगेन एग्रीकल्चर मार्केट में पीपल आर टू क्विक टू रन अ रिग्रेशन ऑन एग्रीकल्चर, बट हार्डली एनीबडी नोज। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अभी
क्या कहते हैं लॉ पास किए ऑन एग्रीकल्चर विच इज एप्लीकेबल टू अस एज वेल, ठीक है ना जी। हमारी एग्रीकल्चर की मार्केट क्या, आड़ती क्या है, मार्केट कमिटी क्या है, और उसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, these things we have to, this is also worth studying, ठीक है जी। तो I think we want to become a little more practical, we want to become a little more pointed, ये हमारा गोल है। तो इस गोल के साथ आप लोग you can try and, I don't think anybody has the truth. We have to keep the discussion going. And two things we have to do, try and get closer to each other and try and examine the hypothesis and thesis. For example, लोग स्टडी करें ना थीसिस किसी का, क्या नायाब ने थीसिस दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, स्टडी करें। अगर वो फहीम ने थीसिस के एड इज टू स्कैटर्ड एंड टू व्हाटएवर, फहीम के थीसिस को एग्जामिन करें और लोगों के थीसिस हैं, लेट्स बिगिन टू नेम द थीसिस एंड टॉक अबाउट देम एंड एग्जामिन देम। we have become too diffident in our research. So I think quite frankly there are a lot of positive things happening in Rasta. Let's continue it. We'll all learn. We are not saying we know everything, and let's proceed. Let's try and make it better. I'm glad you are participating fully. We will learn from you, and inshallah we will try and make it better. ठीक है जी? Thank you. That's all I have to say. Thank you, Dr. Nadeem. I think it's 8:40 now. Everyone would be tired. It was a working day. सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिनको इस दफा ग्रांट नहीं मिली। Trust me, इसमें मतलब it was done in all honesty, and they can always revise the same proposal and send it in our future rounds. We are not looking for equations. मुझे अब याद नहीं रहा किसने ये बात कही थी कि जी आपको एक एकेडमिक इक्वेशंस वाली रिसर्च चाहिए। अभी आपने डॉक्टर नदीम की बात सुनी है, हमें मोस्ट सर्टेनली वो नहीं चाहिए। अब इकोनोमेट्रिक्स लगाना कोई कमाल की बात नहीं है। आपके स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं, आप उसमें डेटा डालें, वो खुद आपको रन करके सब कुछ देगा। हमें आइडिया चाहिए, हमें सॉल्यूशंस चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए। आई थिंक ये अब चीज क्लियर होगी कि पिटी हुई रिसर्च, मक्खी पे मक्खी मारने वाली रिसर्च रास्ता में नहीं ढूंढ रहे हैं। मतलब जैसा अभी डॉक्टर नदीम ने कहा कि जी आरती क्या है, वो क्या कर रहा है, आप मुझे बताएं कितने प्रपोजल्स, वाकई हम बस मिडिल मैन के कैजुअली नाम लेते हैं और आगे चले जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बता सकती हैं। ट्राई टू फाइंड दोस। अभी जैसे ये रियल एस्टेट की बात हुई, बहरिया डीएचए की हम बात करते हैं, आप पूरी अब एटलीस्ट इस्लामाबाद बिल्डिंग में रहते हैं, एक्सप्रेस से सीधे कॉलोनीज 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 है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये सारा चीज हो क्या रही है। तो थोड़ा डीपर सोचें, और अगला राउंड आपके सामने है। फहीम, हमारी कोई वर्कशॉप उससे पहले है? जिसके बारे में सोचते हैं, मेरा ख्याल है कि एक वर्कशॉप होनी चाहिए। अगेन हम अपने अवॉर्डीज को भी कहते हैं कि वो कुछ प्लान करें वर्कशॉप भी, और अपने एक्सपर्ट्स को एंगेज करते हैं। मेरा ख्याल है होनी चाहिए। ठीक, और आप सबको जो है कमेंट्स भेज रहे हैं इररिस्पेक्टिव के वो किस राउंड में उनका एग्जिट था। अच्छा, ये एक चीज है फहीम प्लीज कमेंट्स सबको भेजें, all comments at all stages सबको भेज दिया करें। I think we made a big mistake by not sharing the comments. Comments please share करें। जैसे हमने डिटेल्ड स्टेज के, वर्कशॉप की स्टेज के सबके भेज दिए। इनिशियल स्टेज पे हमारे पास एक एक लाइन के, दो दो लाइन के थे, वो उतने कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते, पर उसको रैक में लेके जाएंगे। जो भी है भेज दें, जो भी है। देखिए बुलेट पॉइंट्स के कमेंट्स और कमेंट्स टू भेज दें, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एवरीवन ओके, बस अच्छी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।